Hello, Pikansa Hornbill TV la Nagmis Express. Aji police complex Chumukidma cabinet meeting thakise Eastern Nagaland Legislators Union logo miligina. Meeting the Chief Minister Dr. Nipurio, Deputy Chief Minister Y Patton or ala cabinet can be attend kursi. IB details about reporter K. Crisenio Lode. Hornbill TV tia yere Rhododendron Hall Police Complex te ahigene ase moikhan aji yere ahigene thaka nishna ekta bishi important meeting jaishe cabinet ministers Nagaland government laga majore aru ENLU Eastern Nagaland Legislative Union khan laga majore meeting loise unfortunately tahan meeting khotom hoine bahar ahya homoy mohan tahan ki koise itu khan do tahan la itu interview tahan la side pra iku statement paule na pari jaishe itu eglai noile mohan government laga spokesperson KG Kinye gibi কথা কৰিছে হলিবি তাইৰ কমেন্ট কৰিবলে এইটো আজিৰ মানা কৰিছে তো মান তাহান ভিতৰে মিটিং টো কি লাগা ওপৰ লৈছে ইটো তো জানিবলে পাৰা নাই হলিবি ইতিয়া মান ইন এজিউম কৰিব পাৰা একটা হলে তো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স তাহান ইটো বাক না লব কইগেনে আহি আছে ইটো নিশনা ইটো সাল হইলিবি ইনেকা হবো না না হবো একটু একটা বেশি ডাঙ্গর সওয়াল বি আছে হয় জাস্ট সাম মান্থস ago spokesperson KG Kinye bra হইলিবি ইটো প্রেস ব্রিফিং একটা দিয়া সময় কহিমারে প্রেস ব্রিফিং একটা দিয়া সময় কই থাকা তো FNT লাগা ইতিয়া ডিসকাশন হইলিবি বেশি ক্রুশিয়াল স্টেট তে পুঞ্চি যাইছে আৰু তাইখান স্টেট গভর্নমেন্ট হইলিবি পয়লা তো মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স আৰু ENPO খান নামাজৰে হি মিটিং যাই থাকিছিল হইলিবি ইতিয়া তো স্টেট গভর্নমেন্ট বি ইটো লাগা discussion de FNT laga issue de tahan bi bag loi thaga nishna bishi crucial state ekta re punchi jaise koi gena huni paise aru itia laga aji laga meeting laga ekta bishi dangor sawal hoile do taikan Hornbill festival de bag lobo na lobo itu la discussion krishna nai itu laga bi dangor sawal aru FNT laga hoile bi itia proceedings to kinika jase state government bra itu laga FNT laga issue de bi taikan laga kunma suggestions reviews Home Ministry of Home Affairs ki bhi pathaise itu nishna Ministry of Home Affairs kan rabi itu saigene aru bi wapas state government ge pathai dia laga bi itia latest development ase itu karne aji itu meetings khando kinia khan la jaise mohan itu khando janiwole para nai holibi para tak janiwole koshish kuribo spokesperson brabi koise itu chief secretary brabi itu laga upor comment kuribo ina bi koise holibi unfortunately mohan jani pado aru chief secretary holibi ajiro iku itu press khan ge holibi iku statement na di jabo koigene mohan huni pas ajila meeting de mohan ENLU khan holibi ahi gene meeting attend kura dikhi paise itu eklai noholibi Chief Minister aru Deputy Chief Minister Y Patton itu eklai nohili PHE la minister aru alak advisor Muatoshi khan holibi itu meeting de present hoigena meeting attend kurine bahar ahya dikhi paise itia garni man hobo mohan paratak ekta itia laga latest sob se dangor question hoile to ENPO khan itu sal Hornbill festival tai khan kuntu bishi important ase tan bi thakiwole tai khan la culture rich culture to show kuribole itu nishna tan itu de bag lobona nai itu ekta dangor sawal ase Hornbill TV holibi paratak itu laga sawal khan holibi huda hudi kuigena state government na ENPO la side pro holibi apni khan logore latest updates aniwo itia garni man hobo K. Crisenio ke ho camera person Wong Hornbill TV Chumukidima Sune Boto Area Public Organization la 4th biannual conference haji lugule ase Listen New Village Zunuboto bra itu ba laga conference to envisioning progress through unity la theme chula ase Nagaland la food and civil supplies advisor Keto Kuha bra special guest ai bole ase aro conference homoide Liza Avikato Ahetu Sumi bra theme speaker hobole ase event te alak posti bra manu khan ai gina cultural performance khan dibule ase Sangai Festival itu sal na rakhibule mang kuri gina manu khan protest kuri thakya homoy security forces khan logo jhamela ulaise kundubra issue to beshi dangor hoi gina tear gas bi chulabole lagi jaise koi gina jani paise Kokomi organization bra seize work koi gina nijor laga kaam kura kina protest thakya homoy itu jhamela do ulaise state te iman manu beshi manu nijor laga ghor na thaki kina thakya homoy enega festival manado thik nai koi na Kokomi bra oppose kuri ase protest organization lo IDP de thakya manu khan bra bi join kurise kun khan bra jaga alak te protest to rakise khurai lam long de protester khan bra Sangai festival thakibole lagal jaga de march kuri na jai thakya homoy security personnel khan bra
रुखा निमिदे क्लैश तो हुई मामला तो डांगर हो जा निमिदे पुलिस प्रा कुनबा टियर गैस शेल भी चुलाइसे कोइना कुइसे एना होइगिना सिचुएशन तो कंट्रोल करबुले पारिसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोंगजम बसंतम मैती। और ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कि हमारे मणिपुर में अभी तक शांति नहीं हो रहा है। जब से ये घटना चलते रहा है सरकार हमारा कहना कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग जैसे पिंजरे में चिड़िया पाल के रखा है, जैसे सेंचुरी में रखा हुआ है, जैसे ही हम लोग को रख के बैठ रहा है। जितना ना सरकार हमारे लिए क्या ध्यान है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को अपने गांव में वापस करना चाहते हैं, अभी तक हमारा वापस जाने के लिए कोई सोच नहीं रहा है। देखिए हमारे भाई बहनों और हमारे बच्चे सब बिगड़ जा रहा है। इसी के कारण हम लोग संगाई फेस्टिवल करना नहीं चाहते हैं। सरकार तो बोल रहा है हमारा टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, ना घर है ना पता है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। कैसे टूरिज्म डेवलपमेंट जरूरी है? मणिपुर का पूरे हमारे मणिपुर कितना चौड़ाई है देखिए, इसी में से अभी तो 700 स्क्वायर किलोमीटर ही हमारा वो हो गया, बाकी सब वो लोग कब्जा करके रखा है। इसमें तो हम तो कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसको हटा करके हम लोग आपस में मिल करके अच्छा से आराम से एकदम पीस हो करके रहना चाहता हूँ। फिर भी अभी सरकार क्या बोल रहा है, पीस नहीं हो रहा है, फिर भी संगाई फेस्टिवल करके हमारा दिल और ज्यादा दुखा दे रहा है, इसलिए हम लोग रोकना चाहते हैं। धन्यवाद। बस एक सवाल, आप लोग कौन से रिलीफ कैंप से आते हैं और ये कौन से लोग हैं ये बताइए। हाँ, हम लोग सवोम्बुंग फैब्रिकेटेड हाउस से टेम्पोररी शेल्टर होम से हैं, उसी में रहते हैं। हमारा इकौका हुआ सदुयंग खुमान और दोलाई थाबी और ग्वांताबी और भिन्न भिन्न स्थानों से आदमी आकर के हम लोग साथ में रहता है। हम लोग कोई भी आदमी ऐसे रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अपना घर छोड़ के हम लोग अपने ही जगह में हम लोग भागना पड़ा। अभी आप लोग क्या करेंगे, यही रहेंगे? नहीं, जब तक शाम तक तो हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारा हालत क्या है, यही बात। देश ते तीने छोकरा छोकरी खानब्रा ताखान दुख पा नहिलिबी दिगदार बादो खुबो नपारिना निजोर लगा जान लुई जा लगा खबर बिशी पाई थाक्या निशना इतो निशना नवंबर 18 देवी इनका एकता अफसोस घटना हुईसे वेस्ट दिल्ली दे 16 साल छोकरा कुन क्लास 10 दे पुरी थाइसे मेट्रो स्टेशन दे जम करिना निजोर लगा जान लुईसे कोइना जानी पाइसे ताला स्कूल बैग प्रा चिटी एकता पाते छोकरा बरा ताई लगा टीचर्स और हेड मिस्ट्रेस प्रा ताइगे बिशी दिगदार दिया लगा कोइना थाकिसे इतो मामला ऊपर केस रेजिस्टर कर लुईसे और थर्सडे दिन दे स्कूल लगा हेड मिस्ट्रेस और 3टा स्टाफ के सस्पेंड कर दिसे होइले भी छोकरा लगा फैमिली मेम्बर्स और मानु बिशी ब्रा जमा करिना थिक प्रा इन्वेस्टिगेशन करबले और जस्टिस दिबले मांग करियसे मुझे बार-बार टारगेट करेगी, मुझे बार-बार टॉर्चर करेगी और बाद में मेरे बैचमेट मेरे फ्रेंड्स मुझे इसके लिए मुझे बार-बार चिढ़ाते हैं कि सौर्य के रिश्तेदार और तमाम बच्चों के पेरेंट्स आज सेंट कोलंबस स्कूल पर
प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जिन टीचरों का नाम शौर्य ने सुसाइड नोट में लिखा है उनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए और स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और जिन टीचरों का नाम लिया है उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सब लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। शौर्य पाटिल सन कोलंबो स्कूल दिल्ली दे क्लास 10 पूरी थकिया स्कूल दे टीचर्स और हेड मिस्ट्रेस पर ताई के बेसि दिगदार दिया और ताई स्कूल जबले भी आलची हुई जा जानी पाइसे तो घटना हुआ पीछे दे छोकरा लगा बाबा बरा जनाई दिसे कि ताई लगा छोकरा बरा स्कूल दे दिगदार पा दो बेसि बार कुसे और ताई खान पर भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के इतो पर साई दी बोले कुसे शौर्य पटेल मेंटली बेसि डिस्टर्ब होगी ना निजोर लगा जीवन लो बोले फैसला तो लुइसे। शौर्य पाटिल का फादर हूँ। मेरा बेटा 10th क्लास में सेंट कोलंबस स्कूल गोल मार्केट में पढ़ता है और 2nd क्लास से इसी स्कूल में है लगभग पिछले 8 साल से। लेकिन कल मतलब परसों 18 तारीख को उसने एक इंसिडेंट हुआ, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से उसने जाके कूद के छलांग लगाई। हम तो नॉर्मल थे, पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी, ये बेटा शरारती है, पीछे चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है। तो मैंने टीचर को बोला था मैडम छोटा बच्चा है, अगर ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो टीचर ने उसके बाद भी उसको टॉर्चर करना जारी रखा था। उसके बाद हमने बेटे को बोला था कि अभी 10th के 10 दिन बचे हैं, हम स्कूल चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने मान भी लिया था। लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया। उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा बेटा सुबह ड्राइवर के साथ 7:15 बजे स्कूल गया था, लेने के लिए उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आया। तो 2:15-3 बजे मुझे फोन आया किसी अनजान से कि आपका बेटा मेट्रो स्टेशन से गिरा है। उसके बाद रात को उसके दोस्त असमेर और अयान से हमें पता चला कि सारा स्कूल में ऐसा पूरा दिन इंसिडेंट हुआ है। मेरे बेटे ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें युक्ति महाजन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस के नाम लिखे हैं। इन्होंने इसको पूरा टॉर्चर किया है और उसने अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स ऑर्गन जिसको जरूरत है उसको डोनेट करने की बात उस पर्ची में लिखी है। उसने माँ बाप और भाई से माफ़ी भी मांगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जैसे चाहे वैसा बन नहीं सका, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी तरह और किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना हो और मेरी तरह और कोई बच्चा ऐसा ना करे। इसलिए इन टीचरों के साथ न्याय हो और इनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो जाए। कल FIR रजिस्टर हो चुकी है और इसमें जो धाराएं लगाई उसके हिसाब से सही तरह इन टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। यह हमारी सब पेरेंट्स की तरफ से हम मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। और इस बच्चे को साथ ही जिन जिन बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको इसके आपके माध्यम से न्याय मिलेगा। ये मामला दो इत्या इन्वेस्टिगेशन खुरिए से इतो मोय दिल्ली सरकार अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बा 5 मेंबर कमिटी बनाइसे। इतो मामला साबो निमित्ते एना होइगिना कमिटी दे 3 दिन भितर रिपोर्ट सबमिट करबले जनाइसे।
शौर्य पटेल अंकल ब्रा मीडिया लोगों कथा कुरिया जनाई दिसे ताई नमुरिया आगे दिन ब्रा स्कूल दे ताई के बिशी दिगदार दो पाई ताकिसे बिल्कुल बात देखो शैतानी या मजाक मस्ती जैसे कल हम उसके कई सारे दोस्तों से भी मिले क्लास में जो है, तो वो बोलते हैं कि जो हम मजा मस्ती थोड़े बहुत इधर उधर करते हैं, 6-7 घंटे हम स्कूल में होते हैं, तो ये तो नहीं कि 6-7 घंटे कोई बैठे बच्चा एकदम से सीरियस ही वहाँ पे बैठे, तो उस छोटी सी मजा मस्ती को भी टीचर्स लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं, काफ़ी डांटते हैं। तो ये शैतानी किस चीज़ को शैतानी बोलते हैं, 16 साल का बच्चा है और उसको एक्टिंग में करियर परस्यू करना था, स्कूल के भी उस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट होता था, उस तरह की वीडियोस भी है काफ़ी अच्छे उसकी डांसिंग के वगैरह। तो जो आर्टिस्ट होता है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, जो खुद सुसाइड नोट में लिखता है कि डोनेट माय ऑल फंक्शनल ऑर्गन्स, इतना सेंसिटिव और मैच्योर स्टूडेंट्स को किस तरह से टॉर्चर किया गया या समझा ही नहीं गया बिल्कुल उसको। जो सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम जिसमें कि बच्चों के अलग अलग उसके क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करके उस तरह से उसको हमें परस्यू करना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एग्ज़ाम और सिर्फ उसका रिज़ल्ट और फिर स्कूल का नाम। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा इशू है जिसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी शौर्य के बिल्कुल पिछले जब से ये 18 तारीख को घटना हुई तब से 20 तारीख को वो 19 तारीख को फिर पोस्टमार्टम होके वो अपने घर चले गए महाराष्ट्र में लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए। तो पूरे लगभग 48 आवर्स जो उस घटना के बाद मैं उनके परिवार के साथ ही था, तो कंटिन्यूसली मैं उनके साथ हूँ, कनेक्टेड हूँ। बात तो यही है कि पिछले 4-5 महीने से ही ऐसे कुछ कंप्लेंट शौर्य ने घर पे की थी टीचर्स को लेके, जिनका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिया है। और उस सिलसिले में पेरेंट्स मम्मी पापा स्कूल गए थे, टीचरों से भी बात की थी, प्रिंसिपल से भी बात की थी कि इस पे कुछ सोल्यूशन या कुछ टीचर्स की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी है, हम भी मानते हैं। अच्छी बात मतलब जो चीज़ें हैं स्कूल में वगैरह उसके रूल्स रेगुलेशंस उसको भी अदर करना उसको हम भी मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पनिशमेंट दे के, सिर्फ डांट मार के, टॉन्टिंग करके ही स्टूडेंट्स को अच्छा किया जा सकता है या यही तरीका है। देयर आर सो मेनी वेज कि परस्यूएशन काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पनिश करके ना चेंज करते हुए उसको हम परस्यू करके किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो ये इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम उनके पेरेंट्स कई बार 2-3 बार गए थे इसी चीज़ को लेके, उसकी कंप्लेंट जो टीचर की, लेकिन शौर्य ने ये देखा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसका टॉर्चर वैसा ही कि वैसा है। शायद हो सकता है वो टॉर्चर बढ़ गया, और जो लास्ट के 4 दिन थे उसके जो स्कूल फ्रेंड है उनका ये कहना है कि इंसिडेंट के पहले के 4 दिन में तो ये टॉर्चर काफ़ी बढ़ गया था, टॉन्टिंग और उसको अपमानित करना, प्रताड़ित करना ये काफ़ी बढ़ गया था। तो इतना का सही तेला बुलेटिन करने और अलग अलग खबर करने से ऑन बिल टीवी। गुड बाय।